خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر اعظم کے مومن خصوصی عطا تارڑ کا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم پنجاب حکومت سے جان چھڑانے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومتی ایم پی اے سے رابطوں کا بھی اعتراف کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران لیگی رہنما نے واضح کر دیا کہ پنجاب میں گورنر راج کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ عمران خان کو بھی خوب لتاڑا، بولے 1/3 ملک سیلاب میں ڈوبا ہے لیکن پی ٹی آئی جلسوں میں مصروف ہے۔ پنجاب میں فراگوگی کے خلاف مقدمات اچانک ختم ہونے پر بھی سوال اٹھا دیا۔ کہا کیا عمران خان نے پنجاب حکومت فرا خان کو NRO دلانے کے لیے حاصل کی تھی؟ گورنر راج کے حوالے سے نہ کوئی تجویز زیر غور ہے، نہ اس معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے۔ دیگر آپشن ضرور زیر غور ہیں کہ ہم پہلے دن سے اس سائڈ کے ایم پی اے سے بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رہے گی کہ یہ اس عذاب سے پنجاب کی جان چھڑائی جائے۔ یہ وقت دکھی انسانیت کی امداد کا ہے۔ حکومت پاکستان پوری طرح کمیٹڈ ہے امداد کے حوالے سے، متاثرین کی بحالی کے حوالے سے جو ہو سکے گا وہ کریں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے ایک سیاسی جماعت آج بھی سیاست کر رہی ہے، ایک شخص صرف اپنی انا کی تسکین کی خاطر کروڑوں روپیہ خرچ کر جلسے جلوس کر رہا ہے اور ان جلسے جلوسوں کو ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے اندر پوری صوبائی حکومت جلسوں کو کامیاب کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ان چند ماہ میں ہی پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پنجاب میں نیا ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا جاتا ہے، آج سے چند روز قبل اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ فرا صاحبہ کے جو اینٹی کرپشن میں کیسز زیر تفتیش تھے ان کو کل کلین چٹ دے کر ان کیسز کو اور فائلوں کو کلوز کر دیا گیا۔ کیا پنجاب حکومت عمران نیازی صاحب نے اس لیے حاصل کی تھی کہ انہوں نے فرا گوگی صاحبہ کو NRO دینا تھا؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں IMF پروگرام میں نہ جاتے تو دیوالیہ ہو جاتے، اگر نگراں سیٹ اپ آتا تو IMF تعاون نہیں کرتا۔ قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ٹھہرنا ہوگا، جو قوم 30 ارب کی ایکسپورٹ کرے انہیں 80 ارب کی امپورٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو IMF کا پروگرام نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں ہمارے ذہن میں تھیں، سچی یا غلط لیکن اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات دو ذہن میں تھی۔ نمبر 1 کہ پاکستان بغیر IMF کے بینکرپٹ ہو جائے گا تو IMF پہ جانا ضروری، اور نمبر 2 IMF اس وقت کیئر ٹیکر سے بات نہیں کرتا، تو پھر ہم نے قیادت نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ٹھہرنا ہے۔ جب ٹھہرنا ہے تو پھر اس کے بعد جو میں نے گزارشات کری تھی اس پہ عمل کرنا پڑا۔ جو قوم پوری قوم 30 بلین کا ایکسپورٹ کرے اس قوم کو پھر 80 بلین کا امپورٹ کرنے کے حق نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ جو ہے نا، دنیا آپ کو قرض نہیں دیتی ہے، دینے کو نہیں چاہتی ہے۔ پاکستان کے اندر ہم ٹیکس ٹو GDP 15 کر لیں اور ایکسپورٹ ٹو GDP 15 کر لیں تو آپ کی حکومت کو ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگنے ہوں گے۔ قانون کی رٹ لگانے والے عمران خان خود قانون سے کھلواڑ کرنے لگے۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکی پر دہشت گردی کے مقدمے میں JIT کے طلب کرنے کے باوجود دوسرے روز بھی شامل تفتیش نہ ہوئے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل، عمران خان کیوں پیش نہیں ہوئے؟ دیکھیں، خاتون جج اور IG DIG کو دھمکی دینے کے خلاف سے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے اس میں آج دوسرے روز مارگلہ پولیس کی جانب سے عمران خان کو طلب کیا گیا ہے، لیکن چیئرمین PTI عدالتی حکم کے باوجود پولیس تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ دن 3 بجے کے قریب لیگل ٹیم کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کے ذریعے نوٹس کروائی گئی تھی اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 5 بجے تھانہ مرگلہ میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاہم آج دوسرے روز بھی پولیس کا جو نوٹس دیا گیا ہے اس پر عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ اب تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن عمران خان کی جانب سے کوئی بھی بیان جو ہے وہ دینے کے لیے وہ مرگلہ کی جو پولیس ٹیم ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ گزشتہ روز بھی چیئرمین PTI عمران خان کو بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور آج دوسری بار پولیس کی جانب سے نوٹس اور آج بھی پیش نہیں ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عادل تنولی آپ کا۔ بات کریں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کی۔ انتونیو گوتریس، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ہمراہ سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں گئے، سیلاب زدگان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار پاکستان نہیں، ترقی یافتہ ممالک مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد کریں، یہ سخاوت کا نہیں انصاف کا معاملہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیلاب سے پریشان لوگوں کی مدد کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کے شہر شہر دورے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لاڑکانہ کے سیلاب متاثرین کیمپ پہنچے، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو ساتھ ساتھ چلے۔ گفتگو میں شہباز شریف نے متاثرین سے کہا کہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نے انتونیو گوتریس کی عمدہ ترجمانی بھی کی۔
want to express, on behalf of the United Nations, my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. अक़वाम मुत्तहिदा के उनके बिहाफ पे आप सबसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जो तबाही आई है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलूदगी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं मगर मुश्किलात झेल रहा है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा दुख दर्द में शरीक होने पर सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल साहब के शुक्रगुजार हैं कि हमारा मुश्किल घड़ी में हमारा दुख दर्द में वो शरीक हुआ है, यहाँ आपके पास पहुँचा है। बिलावल भुट्टो ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को तारीखी मकाम मोहनजोदड़ो का विजिट भी करवाया। इससे पहले एंटोनियो गुतेरेस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान भी पहुंचे। यहाँ की सूरत हाल पर एंटोनियो गुतेरेस को ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि बलूच सैलाब से सड़कें और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया, बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे पहले ये रहनुमा सक्खर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। It is essential for the international community to understand three things, and obviously developed countries have an absolutely key role to play in the international financial institutions joining them. We will do everything we can. दोनों रहनुमाओं ने इमदादी कामों में वसअत और आलमी माली ताउन की अहमियत पर जोर दिया। सैलाब मुतासरीन के लिए जहां बहुत सी मुश्किलात हैं, वहीं खुशी की खबर भी देखने में आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट पैगाम में ऐसे ही एक किस्से का जिक्र किया। लिखा, यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। इमदादी कैंप में एक ऐसे ख़ानदान से मिला जिनके यहाँ गुज़श्ता रात बेटा पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के कैंप में बच्चे की पैदाइश को उम्मीद की किरण करार दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मंछर झील का सैलाबी रेला भान सईदाबाद के रिंग बंद तक पहुंच गया। रोहड़ी से ट्रेनों की आमदोरफ्त 3 हफ्ते बहाल होगी। ताहम महरूबपुर के करीब ट्रैक मुतासर होने की वजह से कराची तक रेलवे रास्ता बहाल ना हो सका। सिंध में सैलाब से तबाही, अब भी कई इलाके ज़ेर आब हैं। टंडवाला यार में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब चुकी। हज़ारों मुतासरीन सेफ्टी बंदों और सड़कों पर बेयारो मददगार बैठे हैं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 6,26,000 क्यूसिक से ज़ायद हो गई। बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मंछर झील का सैलाबी रेला भान सईदाबाद के रंगबंद तक पहुंच गया। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सक्खर के बेशतर इलाकों में अब तक जिले इंतजामिया न पहुंच सकी। कंदकोट के इलाके तंगवानी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खैमा बस्ती में गैर मयारी खाना खाने से 5 बच्चे बीमार हो गए। उधर रोहड़ी में 3 हफ्तों बाद बैनुस्सूबाई रेलवे निज़ाम बहाल हो गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक खैबर मिल पेशावर के लिए रवाना हो गई, जबकि मेहराबपुर के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से कराची का रेलवे रास्ता बहाल न हो सका। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हम बिन उबैद कहते हैं, सैलाब की बदतरीन आफत में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रहेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल आएगा। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। Actually, from the day one when Pakistan affected from the climate change and this flood, United Arab Emirates was on the ground to support the families and the brothers in Pakistan and different provinces in Balochistan and Sindh and few areas in Punjab. We are working 24/7 to support and facilitate and to provide the people with the tents, with the food items, with the medical support. So far, more than, till today, 34 relief flights arrived to different airports in Pakistan and ship from Dubai to Karachi port arrived with 18 containers to support more than 140,000 families in Pakistan. UAE committed to stand behind Pakistan, support Pakistan in this very critical time, and we promise to continue our work on the ground, and inshallah Pakistan will move forward to jump on this crisis. UAE Pakistan Zindabad.
एबटाबाद में बारिश के बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के वार्ड्स में भी पानी दाखिल हो गया। मरीजों को ऐसे में मुश्किलात का सामना है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। एबटाबाद में वक्फे से तेज बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। मरीज और तीमारदार मुश्किलात से दो चार हैं। और ये सर्जिकल वाले इनको हमेशा इंजेक्शन लगते हैं और ये अपने होश में भी नहीं होते, उनको उठा के लेकर आना भी बड़ा मुश्किल होता है। अस्पताल का अहाता और वार्ड्स पानी से भर गए। इंतजामिया ने मरीजों को दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल किया। ये बारिश जो आज की बारिश है ये क्लाउड बर्स्ट है और इसने तो पूरे एबटाबाद को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन हमारा जो कम्प्लेक्स है बदकिस्मती से हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहाँ पर एक तरफ से उस्मानाबाद का पानी है, सामने से मीरपुर का सारा पानी, तीसरी तरफ से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और सरसीद कॉलोनी वाला पानी है वो भी सारे का सारा इधर दाखिल हो रहा है और जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स में सख्त सैलाब की सूरत हाल है। पेशेंट्स की रिहेबिलिटेशन पे हमारी टीम सारा काम कर रही है। शहर में सैलाबी सूरत हाल के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। कई मकामात पर लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गईं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी सड़कों पर आ गए हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। सवात में सैलाब से मुतासरा वादी कालाम और मुल्का इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। लोगों को खाने पीने की अशिया और तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली का अज़म। सवात में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए कालाम और दीगर मुतासरा इलाकों तक अशिया खुर्दनोश पहुँचाई जा रही हैं। पाक फौज की जानिब से अब तक 3800 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। आर्मी चीफ की तरफ से और कमांडर 11 कोर, कमांडर पेशावर कोर की तरफ से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने ना सिर्फ वी हैव टू रीच आउट टू ऑल द टूरिस्ट्स हु आर स्ट्रैंडेड इन कालाम एंड कुमराट, और साथ ही साथ हमने उन सियाहों को वहाँ से निकालना है, बल्कि दूसरा हमारा ये भी काम था कि हमने जो लोकल पॉपुलेशन है, जितने अफेक्टेड विलेजेस हैं, जितने गांव हैं, उन सबको हमने उनके साथ हमने कनेक्ट करना है, उनको हमने फूड सप्लाईज देनी है और उनको हमने हौसला देना है और वहाँ से जो बीमार लोग हैं उनको हमने निकालना है। मकामी लोग ने मुश्किल घड़ी में भरपूर मदद करने पर पाक फौज की खिदमत को सराहा। यहाँ पे तकरीबन 3500 से 4000 तक टूरिस्ट फंसे हुए थे, तो हमारे पाक आर्मी ने और फ्रंटियर कोर वालों ने बहिफाजत इनको रेस्क्यू किया है। मैंने इनकी एफर्ट्स देखी हैं। ये सुबह 5 बजे 6 बजे उठते थे और रात को 12-12 बजे तक ये आवाम में मौजूद रहते थे। हम पाक आर्मी के सब इदारों के हम शुक्रगुजार हैं, दिन रात एक करके उसने काम किया है। पाक फौज की जानिब से कलाम में फ्री मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया है। मरीजों के इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात भी दी जा रही हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम, सवात। हुकूमत और इंतज़ामिया सिर्फ दिलासे देती रही, लेकिन मदद को कोई ना आया। डेरा इस्माइल खान वालों ने अपनी मदद आपके तहत लकड़ियों से आर्जी पुल बनाकर शहर के साथ राब्ता बहाल कर लिया। अहमद नवाज मुगल की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। मकामी लोगों ने शहर से राब्ता बहाल करने के लिए अपनी मदद आपके तहत आर्जी गुजरगाह तामीर कर दी, मगर रस्सी और लकड़ियों से बना ये पुल निहायत खतरनाक भी है। ये गहरा पानी है, ये आर्जी पुल बनाई गई है। अगर इसमें अभी भी कोई बच्चा या बड़ा चला जाए तो शायद उसे निकालना नामुमकिन होगा। मैं सवाल करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो कहाँ पर है। न राशन मिला, न ही कोई खेमा मिला। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इधर के लोकल लोगों को साथ लगाएं जो आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपको पता चल सके यहाँ चीज़ ज़रूरत क्या है। जो चीज़ ज़रूरत होगी आप वो प्रोवाइड करें, बजाय कि आप वहाँ से ट्रक भर भर के भेजते रहें कपड़ों के, वो ज़ाया हो जाएं। कोट ईसा खान के बासियों ने इंतजामिया से अपील की है कि खुदारा हमारे रास्ते बहाल किए जाए और हमें साये के लिए खेमे दिए जाए। अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान। और अभी आपको बताएं PTI का FIA का PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात के लिए एक और इकदाम। साबिक हुक्मरान जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी समेत 5 रहनुमाओं को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से आदिल तनूली की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए पार्टी ओहदेदारों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए।
वफाकी तहकीकाती इदारे ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी फाइनेंस सरदार अजहर तारिक खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 सितंबर को तलब किया है। आतिफ खान और जमाल अंसारी नामी ओहदेदारों को भी उसी रोज बुला लिया गया है। सीनियर नायब सदर अरशद दाद और सराज अहमद को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को फैसले में तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग का मुर्तकिब करार देते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया था। FIA इससे कबल PTI सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से तफ्तीश कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में जलसा कर रही है। उखाड़ पिछाड़ के बायस ग्राउंड और पिच बर्बाद हो गई। जलसागाह के अतराफ की सड़कों और मार्केट्स को भी बंद करवा दिया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। PTI के कप्तान के लिए उजड़ गए खेल के मैदान। पहले लाहौर फिर फैसलाबाद, अब गुजरावाला का जिन्ना स्टेडियम भी तहरीक इंसाफ के जलसे की भेंट चढ़ गया। चंद दिन कबल तैयार की गई क्रिकेट पिच बर्बाद, जगह जगह खुदाई और वेल्डिंग से ग्राउंड में गड़े पड़ गए। लाखों रुपया लगा के स्टेडियम में घास वगैरह भी लगाई है। ये जो भी पॉलिटिशियन आता है स्टेडियम को स्टेडियम नहीं रखा उन्होंने अपने जलसागाह बना दी हुई है। लेकिन हमारी तो दरख्वास्त ये है गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेडियम में जलसे नहीं होने चाहिए। सियासी जमातें जितनी भी हैं जलसे वगैरह करें, उनका हक है वो करें जलसे। तमाम सियासी जमातों को कहा जाता है जो स्टेडियम को छोड़ दें, बाहर बहुत सी जगह है जहाँ मर्जी जाके जलसा करें। उधर मेहरबान पंजाब हुकूमत भी कप्तान की खिदमत में मसरूफ है। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी नफरी तैनात करके मुतादिद सड़कें मार्केट्स बंद करवा दी। हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, तो ना हम कहाँ पर जा सकते हैं और ना ही कोई अपने ज़रूरियात की चीज़ लेने जा सकते हैं। मार्केटों के देखें कॉर्नर पर पुलिस खड़ी है, जिस चौक में चले जाए वहाँ पर पुलिस जाने देती नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए स्टेडियम में 3000 कुर्सियां लगाई गईं। इमरान खान आज शाम खिताब करेंगे। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं कि कौम आखिरी गेंद की तरह आज इमरान खान के आखिरी जलसे के लिए भी तैयार है। दूसरे मरहले में गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशियों में मजीद तेजी आएगी। एक बयान में शरी रहमान ने कहा कि PTI के जलसों में सियासी मुखालिफिन के साथ साथ इदारों और अदलिया के खिलाफ बदजुबानी की गई। उनका कहना था कि इमरान खान बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं, उन्हें माइनस करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम फाकों पर मजबूर हैं, लेकिन वजीर आला शाह खर्चियों में मगन है। ईवान वजीर आला के लिए तीतर, बटेर, बकरे की रानें और सी फूड्स फराहम करने के लिए निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, सैलाबज़दा इलाकों में जहाँ एक जानिब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और एक वक्त की भी रोटी उनको मैसर नहीं है, वहीं ऐवान वज़ीर आला में जो शाही खाबे हैं उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। तीतर, बटेर, सालिम, बकरे, राने और सी फूड जो है इनके खानों में शामिल किए गए हैं। इसके साथ चिकन का गोश्त, लेग पीस, मटन और बीफ भी जो है वो इन खाबों में शामिल है। जो ऐवान वज़ीर आला की दस्तरखान है और इन खाबों के लिए 7 कंपनियों को ठेका दिया गया है और इसके लिए आला दर्जे के फल और फूल भी जो है वो टेबलों पे जीनत बनेंगे। वज़ीर आला दफ्तर के लिए 4 करोड़ 49 लाख रुपए की ग्रोसरी का जो है वो खर्चा सामने आ रहा है, जबकि इसके साथ साथ 1 करोड़ 23 लाख रुपए जो है वो मटन और बीफ उससे खरीदा जाएगा। और जहाँ जानिब राजनपुर और डेरा गाजी खान में लोग एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, वहीं करोड़ों रुपए से जो है ये तैयारियां जो है वो की जा रही है और सिर्फ फौरी जो है वो मूव कर दी गई। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी आपका। इमरान खान पुलिस के तलब करने के बावजूद मुसलसल दूसरे रोज भी दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश न हुए। दूसरे नोटिस में इमरान खान को शाम 5 बजे थाना मरगला तलब किया गया था। और सैलाबज़दा इलाकों में फाके, पंजाब के ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबे, 7 कंपनीज को 9 करोड़ 75 लाख रुपए का ठेका दे दिया गया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आसिफ जरदारी के नाम पर लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। मलीर हाउसिंग में 27 साल बाद भी 22,000 लोगों को प्लॉट नहीं मिले। अक्टूबर नवंबर में मुल्क में अहम फैसले होने वाले हैं। मैं जरदारी साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूं कि आपके नाम पर यहाँ पर लोग लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मलीर हाउसिंग स्कीम है। 27 साल पहले 22,000 लोगों कराची के खानदानों से पैसे वसूल कर लिए गए और वो अभी आबाद नहीं, उनको दिए नहीं गए प्लॉट और वहाँ पर अब एनक्रोचमेंट कराई जा रही हैं। इसी तरह से हॉक्सबे स्कीम जो है
वहाँ पे भी तमाम कराची वालों से हज़ारों खानदानों से पैसे ले लिए गए ज़मीनों के और उनको ज़मीनें नहीं दी गई। अब उसको इनक्रोच कराया जा रहा है कि मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब के पास जितना पैसा, उनको छोटे छोटे प्लॉट घेरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो छोटे छोटे घूम रहे हैं प्लॉट घेरने वाले, ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क इस वक्त जो है वो 2 सीटों की बरतरी से हुकूमत चल रही है। उन 2 सीटों में बहुत बड़ा चंग जो है वो पीपल्स पार्टी का है। और मुल्क चलाने वाले जो रियासती इदारे हैं, अक्टूबर नवंबर में मुल्क में अहम फैसले होने हैं। आप इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज कर नहीं सकते, तो सबको पता है। तो पीपल्स पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है कि भाई अब ये नवंबर से पहले तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इनको रोकेंगे तो ये हुकूमत से अलग हो जाएंगे, और हुकूमत से अलग हो जाएंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। और फिर उसके बाद जो मुल्क में अक्टूबर नवंबर में फैसले होने हैं, फिर पता नहीं हो किसके हाथों में चली जाए सारी चीजें। इस चीज का नुकसान कराची के लोग उठा रहे हैं। पुलिस की नाअहलिया मुजरिमों से मिली भगत। पंजाब में रवां बरस 8 माह के दौरान 33 खतरनाक मुल्जिमान लॉकअप और पेशी के दौरान पुलिस की हिरासत से फरार हुए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखते हैं। संगीन जुराइम में मुलव्विस खतरनाक मुल्जिमान के लिए हवालात तोड़ना या हथकड़ियां खोलना खेल बन गया। पंजाब पुलिस की हिरासत से 8 माह में 33 खतरनाक मुल्जिम फरार हो गए। गफलत की इस दौड़ में पहले नंबर पर लाहौर पुलिस रही, जिसकी हिरासत से 11 मुल्जिमान फरार हुए, जिनमें खतरनाक डाकू भी शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद से 6, गुजरांवाला से 4, शेखुपुरा, रावलपिंडी और डीजी खान से 3 मुल्जिम फरार हुए। हुक्काम ने गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन मुल्जिमान के फरार होने के वाकयात बजाय कम होने के बढ़ते जा रहे हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ बैंक की कैशवैन लूटने वाले ड्राइवर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मुल्जिमान से 4 करोड़ 96 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। रातों रात अमीर होने का ख्वाब, कैश वैन का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख लेकर फरार। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ मनी ट्रांसफ़र वैन को लूटने वाले मुल्जिम को पुलिस ने 6 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वैन का ड्राइवर ही वाक़े में मुलव्विस निकला। मुल्जिम और इसका साथी गुज़िश्ता 2 साल से वैन लूटने की प्लानिंग में मसरूफ़ थे। मुल्जिमान के कब्जे से तमाम रकम भी बरामद कर ली गई। 2 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा था और उसके प्लानिंग बन रही थी। उसने लॉकर की की भी निकाली। फिर ही वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब वो गार्ड उसके साथ ना, और उसने सारा प्लान किया हुआ था। और अगर पुलिस बर वक्त रिस्पॉन्स ना करती तो ये मुमकिन बिल्कुल था कि हम मुल्जिम तक तो शायद पहुँच जाते कुछ अर्से बाद, मगर रिकवरी हम ना उस तक पहुँच सके। मुल्जिम के मुताबिक बैंकों का मकरूज होने की वजह से हर माह 20,000 रुपये कर्ज वापस कर रहा था। बैंक का पैसा देना था, वो तंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मनी ट्रांसफर वैन में मुख्तलिफ बैंकों की रकम ट्रांसफर की जा रही थी। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियों, ब्लैक मार्केटिंग और मुनाफाखोरी का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल में यूटिलिटी स्टोर्स को 15 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सब सामने आ गया। शकील अहमद की रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में अरबों रुपए की करप्शन को बेनकाब कर दिया। पीटीआई दौर में इदारा माली बाद इंतजामी और मुबैना फ्रॉड के बायस नुकसान में रहा। 2018 से 2020 के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स के मजमूई नुकसानात का हजम 15 अरब 51 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में 6 अरब 42 करोड़ की माली बेज़ाब्तियां हुई। फ्लावर मिल्स मालिकान ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की मिली भगत से 5 अरब 30 करोड़ का नाजायज मुनाफा कमाया। 66 करोड़ 28 लाख किलोग्राम सरकारी गंदम की पिसाई फ्लावर मिल से कराई गई। आटे का हर 5वां थैला मिलों को बतौर मुनाफा रखने की इजाजत दी गई। मैदा, सूजी और चोकर जैसी बाई प्रोडक्ट्स भी फ्लावर मिल्स को तोहफे में दे दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद रीजन में फ्रेंचाइज यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 66 लाइसेंस बगैर स्टॉक इंश्योरेंस जारी किए गए। इससे इदारे को 41 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। 11 करोड़ 50 लाख रुपए का घी और कुकिंग ऑयल ओपन मार्केट में बेच दिया गया। सब्सिडी पर दी जाने वाली चीनी की ब्लैक मार्केटिंग से भी कॉरपोरेशन को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का चूना लगाया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको ये खबर दें कि 943 मिलीमीटर बारिश के बावजूद मोहनजोदड़ो में पानी जमा नहीं हुआ। निकासी के बेहतर निज़ाम की वजह से कहीं पानी जमा नहीं हुआ। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से बात करेंगे।
मंसूर मुगैरी, पूरा सिंध डूब गया, सैलाब मुतासरीन मुश्किल में है, यहाँ पर ऐसा क्या निज़ाम था जिसकी वजह से ये इलाका महफूज रहा? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मोहनजोदड़ो जो 5000 साल पुरानी सिंध की तहजीब है, उनका ड्रेनेज निज़ाम इस तरह होने के बावजूद वहाँ पर पानी नहीं रुका है और पानी नीचे उतर गया है। तो हाल ही में सरदार अली शाह वली इस हवाले से आप हमें बता रहे थे मंसूर मुगैरी, आपका शुक्रिया। उधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं आयशा अता से। जी आयशा। अच्छा, बिल्कुल दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहा और बिल आखिर गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला लाहौर में आज तीसरे रोज़ भी वक्फे से शुरू हो गया है और बादल बरस रहे हैं, खूब जमकर बरस रहे हैं, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। वो मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो बरस रही है। यहाँ तक कि शहर के नशीबी इलाके जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान वक्फे से लाहौर में रात गए तक किसी तरह से बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इससे गर्मी का जोर जो है वो टूट गया है, साथ ही साथ मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। जी आयशा तो अपडेट कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MNA शकूर शाद को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस इस्तीफे के मामले पर हाईकोर्ट जाने पर जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि शकूर शाद ने कौमी असम्बली रुकनीत का इस्तीफ़ा खुद अपने हाथ से लिखा था। उन्होंने अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा ट्विटर पर भी शेयर किया था। PTI ने शकूर शाद को 7 दिन में शो कॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत की है। ये नोटिस सूबाई पार्टी सदर अली जैदी और इमरान इस्माइल की तरफ से जारी किया गया है। कराची में सिंध हुकूमत के पहले मास ट्रांजिट मंसूबे और ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे को कराची वालों के लिए तोहफा करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी सिलसिले में सलमान अहमद। अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। औरंगी टाउन 5 नंबर से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक का किराया 10 से 20 रुपए तक रखा गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन मंसूबे को कराची वालों के लिए तोहफा करार देते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची के शहरियों को एक और बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट के हवाले से खुशखबरी मिले। 3.8 किलोमीटर तवील मंसूबे का संगे बुनियाद 2016 में रखा गया था और काम को 1 साल में मुकम्मल होना था। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मंसूबा तकनीकी वजूहात के बाइस ताखिर का शिकार हुआ। 10 इदारों के जो लाइन्स हैं उन रोडों पे जा रही होती है, उनके पोल्स उन रोडों पे होते हैं। फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी आप इसको हटाएं। फिर वो कहते हैं जी अगर आप चाहते हैं कि इस पोल को इस जगह से जाके 20 जगह पे जगह उसके आप चालान पे करें, तो वो एक प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ता जा रहा है। 12 मीटर तवील जदीद एयर कंडीशन बस में एक वक्त में 90 अफराद सफर कर सकते हैं। ऑरेंज लाइन बस को ताहाल ग्रीन लाइन बस के साथ मुंसलिक नहीं किया गया है। सिंध हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो इन बसों में बेहतर सफरी सहूलियात हासिल करने के साथ साथ इनकी खुद हिफाजत भी करें, क्योंकि ये उनकी अपनी बस है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। फेक न्यूज़ ने दुनिया भर में सोशल मीडिया सारिफीन को परेशान करके रख दिया है। बगैर तस्दीक वीडियोज़ और ख़बरें शेयर करने का रुझान माशरती इक़दार को कैसे नुकसान पहुँचा रहा है। लाहौर से अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। सारिफीन की जानिब से ख़बर को तस्दीक किए बगैर शेयर करना मामूल बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन इस हवाले से कितने बाशऊर हैं और क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की भरमार है। सियाकुसबाग से हटकर तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला जारी है, सिर्फ मकबूलियत और फैन बढ़ाने की धुन। हाल ही में अदारों को भी फेक न्यूज का हिस्सा बनाने की घनौनी साजिश की गई। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, फेक न्यूज का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं, शेयर्स कर दी जाती हैं जिनका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। हम अक्सर औकात इस तरह करते हैं कि तस्दीक किए बगैर हम उसको आगे फैला देते हैं उस खबर को, और उसका जो सबसे बुरा नतीजा निकल रहा है ना सोसाइटी में, वो सोसाइटी में इंतशार फैल रहा है।
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ غلط خبریں پھیلانے سے معاشرتی اقدار کو نقصان پہنچتا ہے. فیک نیوز پر 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے کیسز کے حوالے سے لاء میں سیکشن 20 کی جو سیکشن 20 ہے وہ موجود ہے، آفینس اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن، جس میں جو پنشمنٹ ہے وہ بھی 3 ایئرز ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی خبر یا ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے چھان بین ضرور کر لیں تاکہ بعد میں شرمندگی اور تعزیر کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور. Good evening, ladies and gentlemen of the media. We have declared war on nature. And as we see here in Pakistan, nature is striking back with devastating consequences. Climate change is supercharging the destruction of our planet. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. A flooded area that is 3 times the total area of my own country, Portugal. Over 1,300 lives were lost, tens of millions of people homeless, 1/3 of this vast country submerged, livestock and crops wiped out. But behind these numbers lie unquantifiable depths of human suffering. But I've also seen great heights of human endurance and heroism, from emergency workers to ordinary people helping their neighbors. Of course, we can quote numbers that are appalling, but this is a question about people that suffer. The families that have lost their houses, or members of the family. The farmers that have lost their crops, or their livestock. Those that have no longer the livelihoods they need to sustain their life. And at the same time, the most emotional moment for me during this visit was to listen to a group of women and men that have sacrificed their possessions, the possibility to rescue things from their own houses. They left everything to help neighbors to be rescued, to help neighbors to come out of houses that were falling apart and to be able to reach safety with them. This extraordinary generosity of poor people has touched me deeply, and I hope that this example will be followed by all those in the world that have power to support Pakistan in this hour of need. I want to pay tribute to the gigantic efforts of the Pakistani authorities, civilian and military, national and regional. I also want to thank the civil society, the humanitarian organizations, and also my UN colleagues who have rushed in. And I also want to take profit to thank all those donors that have started to support Pakistan in this terrible hour. The needs are enormous, and I urge massive and urgent financial support for Pakistan. And this is not just a question of solidarity or generosity, it is a question of justice. Pakistan is paying the price of something that was created by others. I have called this a monsoon on steroids, and there is nothing natural about disasters of this scale. Climate change caused by human activity is supercharging storms and catastrophes in Pakistan, but also in Chad, the Horn of Africa with their terrible drought and the risk of famine and beyond. All these countries did not cause the problem, but they are paying the price. These extreme weather events have the fingerprints of human activity all over them, specifically the burning of fossil fuels eating our planet. The G20 countries are responsible for 80% of today's emissions.
1%, 80%. And developed economies are responsible for the vast majority of greenhouse gases throughout history. Here, from Pakistan, I want to reinforce a clear point. Wealthier countries are morally responsible for helping developing countries like Pakistan to recover from disasters like this and to adapt, to build resilience to climate impacts that unfortunately will be repeated in the future. As is painfully evident, those impacts are skyrocketing. People living in high climate vulnerability conditions, including in South Asia, are 15 times more likely to die from climate impacts. Nearly half of humanity is now in this category, the overwhelming majority in the developing world. As Pakistan is deluged, as famine stalks the Horn of Africa, rich countries must step up adaptation finance. At least half of all climate finance must go to adaptation and climate resilience for countries like Pakistan to be able to face the next floods in a way that protects their citizens and protects their economy and their wealth. खारजा बिलावल भुट्टो और सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस।